کہ آج نسلیں برباد اور گھرانے برباد اسی لیے ہیں کہ انہوں نے خدا کی راہ کو چھوڑ کر دنیا داری کی چیزوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو انوالو کر لیا ہے۔ کیا ہی خوبصورت زندگی ہے کہ آپ دونوں بھی اور آپ کے ساتھ بہت ساری بیٹیاں اور بیٹے رات کو 1 بجے 1:30 بجے آن لائن پریئر میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر جسمانی ہوتے تو جسمانی خواہشات کے اندر پڑے رہتے۔ پہلے جب میں خدا میں نہیں تھی، میں بہت سی نکمی حرکتیں کرتی تھی، دنیا کے کاموں میں تھی۔ ورشپ کرتے تو خداوند کی ایک بلیسنگ آ کر ٹھہرتی ہے۔ جیسے جو ہے داؤد پرستش کرتا تھا تو خداوند جو ہے وہ بڑے گہرے کام کرتے تھے۔ ہم نے خدا کو قبول کیا تو ہماری زندگی بدل گئی ہے، اور میں یہی پیغام دینا چاہوں گی ہر ایک نوجوان کو کہ اپنی جوانی کے ایام میں خداوند کو قبول کریں۔ جب سے ہم نے بائبل اسٹڈی سٹارٹ کی ہے، ہم لوگ جو ہے وہ میٹنگ لیڈ کرنے کا بھی جب ہمیں موقع ملتا ہے تو خداوند جو ہے وہ ہمارے وسیلہ سے بہت گہرے کاموں کو کرتے ہیں۔ خدا کا شکر کرتے ہیں خدا نے ہماری زندگی کو بدلا ہے۔ جی تو ناظرین، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو آج میرے ساتھ 2 شخصیت موجود ہیں، ان کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوانی کے عالم میں جب بھی ہماری کسی سے بات کال پر ہوتی ہے یا پھر ہمارا جو رشتہ ہے، رشتے کی شروعات ہوتی ہے، تو ہم رات بھر جو ہے کال پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے جو چال چلن جہاں ہمارے جو نظریات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، تو خدا کا خادم اور خدا کی خادمہ جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو اکیلے میں باتیں کرتے ہیں رات بھر، وہی باتیں جو ہے ہم مسیح نجات دہندہ کے ساتھ مل کر کریں۔ تو انہوں نے اپنی ایک ٹیم کا چناؤ کیا، اور اب جو ہے رات کو 1 بجے ان کی جو ہے آن لائن واٹس ایپ پر کال ہوتی ہے، اور اس میں بہت سارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 1 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ ان کی اس عبادت میں جو ہے ان کی لائیو کال میں آ رہے ہوتے ہیں۔ جی سسٹر جی، آپ مجھے بتائیں کہ کب سے آپ پر سب کے ساتھ مل کے خدمت کر رہے ہیں؟ مسیح میں سب کو اسلام، جو مجھے دیکھ رہے ہیں سب بہن بھائیوں کو، نوجوانوں کو میری طرف سے اسلام۔ ہمارے ریلیشن کو 1.5 سال ہو چکا ہے، اور شکر گزاری کرتے خداوند کی کہ خداوند نے بہت مضبوط ریلیشن قائم کیا ہے، کیونکہ اگر جسمانی ہوتے تو جسمانی خواہشات کے اندر پڑے رہتے، لیکن شکر کرتے کہ روحانی ہے، اور ہمیشہ کبھی بحث تکرار بھی ہوئی ہے تو روحانی باتوں پر ہی ہوئی ہے، کہ دعا نہیں کی یا روزہ نہیں رکھا یا ان چیزوں پر بحث تکرار ہوئی ہے۔ تو بہت خداوند کی شکر گزاری کرتے کہ اگر جسمانی ریلیشن ہوتے تو شاید دوسرے کاموں کے اندر بحث تکرار آج ہو رہی ہوتی، لیکن شکر گزاری خدا کی کرتے کہ خداوند نے اپنے خادم بندہ مجھے پرووائیڈ کیے، اور شہر کراچی کے اندر میں پیدا ہوئی ہوں۔ اعظم بستی کے اندر میری رہائش ہے، اور اعظم بستی کا یہاں نوجوانوں کا چال چلن اگر میڈیا دیکھ رہی ہے کراچی کے اندر سے تو وہ اچھے طریقے سے جان سکتی ہے کہ یہاں کا ماحول کیسا ہے۔ لیکن شکر کرتے کہ خداوند نے ہمیں دنیا سے الگ کیا، اور خداوند آج اپنے کام کے لیے ہمیں استعمال کر رہے ہیں۔ خداوند اپنے لوگوں کی پہچان کو بڑھا رہے ہیں، اور خداوند نے اپنے کام کے لیے ہمیں چنا ہے۔ اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے۔ میں بھی خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ میں نے جو دیکھا کہ جب اس رشتے میں نوجوان آتے ہیں تو رات بھر وہ کال پر لگے رہتے ہیں، لیکن آپ دونوں کی زندگی جو میں نے دیکھی ہے، کیا ہی خوبصورت زندگی ہے کہ آپ دونوں بھی اور آپ کے ساتھ بہت ساری بیٹیاں اور بیٹے رات کو 1 بجے 1:30 بجے آن لائن پریئر میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے کہ 1 سے 1.5 گھنٹہ ہوتی ہے۔ یہ چیز مجھے بہت ہی آپ لوگوں کی اس چیز نے متاثر کیا، اور اس چیز کی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کا، آپ کی ٹیم کا انٹرویو کیا۔ اور جتنے نوجوان اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے آپ انہیں کچھ میسیج دینا چاہیں؟ جی، جتنے نوجوان اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ آج نسلیں برباد اور گھرانے برباد اسی لیے ہیں کہ انہوں نے خدا کی راہ کو چھوڑ کر دنیا داری کی چیزوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو انوالو کر لیا ہے۔ لیکن ہمارا مسیحا چاہتا ہے کہ ہم اپنے خداوند کے کام کو کریں، کیونکہ اگر خداوند اپنا بندہ مجھے پرووائڈ نہیں کرتے تو شاید آج جسمانی ریلیشنز کے اندر پڑے ہوتے، لیکن شکر کرتے کہ خداوند نے جسمانی کاموں سے بچا کر ہمیں اپنے کام کے لیے ہمیں انوالو کیا ہے۔ دنیا کے نوجوان دنیا کے ریلیشنز آدھی رات کو وہ غلط ریلیشن پہلے ہی وہ باندھ لیتے جو خداوند نے جس کام کے لیے منع کیا ہے، کیونکہ خداوند کو بھی نوجوانی کے اندر خداوند کو
ऐसे ही फर्जंद पसंद है जो नौजवानी के अंदर ही खुदावन को कबूल करें और खुदावन की खिदमत करें। क्योंकि हम अगर देखें तो पहले के लोग बेशक खुदावन की कलाम से इतने मुनव्वर नहीं थे, लेकिन आज टेलीविज़न के ज़रिए से खुदावन ने अपने कलाम को इस तरह फैला दिया है, जिस तरह दरिया के अंदर पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ, खुदावन ने उसी तरह खुदावंद ने अपने काम को किया है। आज टेलीविज़न के अंदर देख लें, एक एक गली के अंदर देख लें तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चर्चेस मिलेंगे जहां खुदावन की आवाज़ सुन रहे हैं। हर एक नौजवान, हर बच्चा, हर बुजुर्ग खुदावन की आवाज़ को सुन रहे हैं। लेकिन क्या हमने अपने दिलों को सख्त कर लिया है? मैं नौजवान बहन भाइयों को ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि अपनी नौजवानी के दिनों के अंदर खुदावन को याद करें, क्योंकि खुदावन को आज ही याद करेंगे तो आपकी नौजवान नस्लें कभी बर्बाद नहीं होंगी, बल्कि खुदावन उन्हें आसमान की बुलंदियों पर इस्तेमाल करेंगे। पर सब मुझे ये बताएं, कभी आपको मुश्किल नहीं लगता कि आपकी फैमिली जो है वो गुजरात में है, आप कराची में खिदमत के लिए सेटल हुए हैं, और मैंने तो देखा है आप जो हैं वो चर्च में ही रहते हैं, चर्च भी आपका अभी जो कंस्ट्रक्शन जारी है, तो आपको कभी मुश्किल तो नहीं पेश आई? बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो फील होती है। जब मैं यहाँ पर आया तो बेशुमार जो है वो मुझे बड़ा डर लगता कि मैं वापस चला जाऊं, क्योंकि पीछे बहन भाई है, माँ बाप है, बड़ा एक अच्छा सेटअप है। लेकिन मैं जानता हूं कि जिनके अंदर यहोवा खुदा का रूह काम करता है, तो पलूस रसूल खुदा के हादिम कहते हैं कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा, मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। जब हमारे दिल के अंदर मसीहा की मोहब्बत आ जाती है, हमें सारी चीज़ें छोड़ने के अंदर मुश्किल नहीं होती। शैतान जो है वो मुश्किलात का जो है वो सामने लेकर आता है, लेकिन खुदा यीशु मसीह उनमें से निकालने की जो है वो कुदरत रखते हैं। क्या मुझे बताएं, आप अकेले हैं तो खाना आप खुद बनाते हैं? नहीं, बस खुदा की शुक्रगुजारी के कलीसिया के अंदर खुदा ने अच्छे लोग जो है वो मुहैया किए हैं, तो आज तक किसी भी जो है वो चीज़ की कमी की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वफादारी से कलीसिया के अंदर काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी टीचर ने ये बाइबल कॉलेज के अंदर ये हमें सिखाया, और जो है वो क्या ही खूबसूरत खुदा के हादिम ने कहा कि जहाँ पर बारिश ना हो वहाँ पर फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और जहाँ पर खुदा के रूहानी हादम ना हो वहाँ पर नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। पर सब आपकी जो टीम है, जो आपका टीम वर्क है, वो मुझे तो बहुत ही मुतासर करता है, क्योंकि आपको पता है मैं भी आप लोगों के साथ ही ठहरा हुआ था। तो आपके जो 7 नौजवान बेटियां हैं, उनकी दुआ की जो तड़प है, आप मुझे बताएं, ये आपने बाइबल स्टडी की क्लास कब शुरू की, और ये जो नाइट प्रेयर आप अपनी टीम में कर रहे हैं रात को 1 बजे, इसके बारे में आप बताएं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते, क्योंकि हमने मसीहा का काम करना है। मैं एक चीज़, खुदा ने मुझे ये मुकाशफा दिया कि मूसा के हाथ जब तक उठे रहे फतह होती रहे। तो कलाम के अंदर लिखा है कि जंग के लिए घोड़े तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन फतह या भी खुदा यीशु मसीह की तरफ से है। और जब हमारे हाथ दुआओं में नहीं उठे होंगे तो हम फतह कैसे पा सकते हैं? आज कलीसियाओं के अंदर जो है वो नाकामी क्यों है? क्योंकि उनके मुकामी पासबान खुद नहीं दुआ करते, और जो है वो कलीसिया को भी मोटिवेट जो है वो नहीं करते। तो इसलिए खुदा ने मुझे ये बोझ दिया कि जिस तरह मैं बहुत से ऐसी हैवी जो है वो केसों पर जाते हैं तो खुदावन का जलाल ज़ाहिर होता है। अगर मेरी कलीसिया के अंदर जो टीम है, जो जिनको खुदा ने आवाज़ देकर बुलाया है, जिनको खुदा ने अपने काम के लिए मुकर्रर किया है, जिनको खुदा ने जो है इस काम के लिए बुलाया कि वो खुदा का काम करे, अगर उनकी दुआया ज़िंदगी डेड होगी तो जो केसेस हम दूसरे इलाकों के अंदर जाते हैं वहाँ से हम निकाल कर आएंगे तो वो हमारी टीम के अंदर आ जाएंगी चीज़ें, तो हमारी कितनी यसु नाम की कितनी बदनामी होगी। तो इसलिए खुदा ने मुझे बोझ दिया। पहले तो ये बहुत ज़्यादा टीम के अंदर सुस्ती काहलियत कर जाते, लेकिन अभी जो है खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है, यहाँ तक इनको डांटा भी जाता है। और ये जानते हैं कि इनसे, अपनी टीम से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इनके लिए दिन रात रोजे रखता हूँ, दुआओं के अंदर ठहरता हूँ। लेकिन अगर ये सुस्ती या अगर ये बात को ना माने तो आपको पता है फिर बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आती है। पर सबको ऐसा केस मुझे बताएं, क्योंकि आपकी जो हर वक्त जंग है, आप जंग की हालत में रहते हैं, तो आपकी जो जंग है वो इब्लीस के साथ रहती है। आपकी टीम भी आपके लिए दुआ कर रही होती है, वो आपके बैक पे होती है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं जहां आपको इब्लीस ने ललकारा हो?
कल की बात है, और हमारे साथ जो मेरा यानी कि दोस्त का बेटा दाइम है, तो वो मेरे साथ बैठा था। तो जब मैंने जो है वो वीडियो कॉल की और जो ही दुआ की, तो वो उस जादूगर ने मेरा नाम लेकर मुझे जो है वो बुलाया। मुझे कहता है कि शरोज, तू आजम टाउन के अंदर रहता है, अगर तू हमारे घर के अंदर आया इसके लिए दुआ करने के लिए, तो मैं तुझे मार डालूंगा। जब उसने ये लफ्ज जो है ये बयान किया कि मैं तुझे मार डालूंगा, तो मुझे वो दाऊद की बात याद आई कि अब मौत की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। तो ये क्या चीज है? तो मैंने कहा जो है खुदा मुझे रास्ता जो है मेरे रास्ते के अंदर मदद कर। तो यकीन जाने उस जगह पर जाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। खुदावन जो है वो 20 मिनट के अंदर वहाँ पर लेकर गए, और जब मैं वहाँ पर गया तो वो वहाँ पर जाते ही अबलीस उसके अंदर जो है वो हाजिर हुआ और उसने ललकारना शुरू कर दिया। उसके अंदर जो है इतनी पावर शैतान ने उसको दे रखी थी कि वो जो है वो बारी से बारी चीज़ें भी यूं ऐसे उठाता जैसे वो कोई हल्की सी चीज़ उठा रहा है। तो जब वहां पर गए वो इसलिए कर रहा था ताकि वो हमें डराए। तो जब यानी कि उसने अपना सारा यानी कि डराने का काम मुकम्मल किया, तो मैंने कहा बस, कहता बस। तो फिर यीशु मसीह के नाम से जो है वहां पर दुआ की गई, तो खुदा के बेटे यीशु ने वहां पर अपने जलाल को जाहिर किया। पर सब छोटा सा, जितने नौजवान इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें आप कुछ मैसेज देना चाहें? खुदा ने अपने बंदा को ये ब्लेसिंग दे रखी है। जलाल टीवी के लिए भी मैं बड़ी शुक्रगुजारी करता कि जो है ये जगह जगह गाँव के अंदर, शहरों के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये खुदा का काम करते हैं। नौजवानों को यही मैं खुदा का मैसेज देना चाहता हूं, बेटियों को, बेटों को, कि वो अपनी दुआया जिंदगी को जो है वो कायम करें। एक और बात खुदा ने मेरे दिल में डाली है कि मैं आपसे जरूर शेयर करूं। कलाम के अंदर लिखा है कि ईमानदार ही जब मुश्किल से निजात पाएगा तो गुनहगार का क्या ठिकाना। आज नौजवानों को मैं देखता हूं कि दुआ के वक्त दुआ करते हैं, फिर इसके बाद जो है वो गाने सुनते हैं, ड्रामे देखते हैं, फिल्में जो है वो देखते हैं। तो मेरा के जाती तजर्बा है कि ਜਿਹੜਾ ड्रामे में ड्रामा ही बन जाता जी, और हरकत चेक करके वेख लियो। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अपना दिल यीशु मसीह के साथ लगा लीजिए। जितना से बड़ा हैवी केस होगा, जब आप वहां पर कदम ही रखेंगे, वो इब्लीस रोना शुरू हो जाएगा, चिल्लाना शुरू हो जाएगा और ये कहना शुरू हो जाएगा कि ये खुदा का क्या है जी, बंदा है। जैसे पलूस रसूल और सलास एक इलाका के अंदर गए, वहां पर खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, और हम आपके लिए भी दुआ गो हैं। खुदा यीशु मसीह आपको पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल करे और खुदावन का जलाल आपकी जिंदगी के अंदर जाहिर हो। बहुत शुक्रिया। पर सब आपकी जो बातें हैं ना, ये मुझे मुतासर कर रही है कि मैं मजीद टाइम आपके साथ जो है ना गुजारूं। इतनी खूबसूरत आपकी बातें, इतना नॉलेज, यूं लगता है कि जैसे कलाम आपके अंदर ना। 5वीं अंजील की जब मिसाल दी जाती है ना, वो 5वीं अंजील ये है। पर सब सवाल ये है कि बहुत सारे नौजवान इस वक्त हमें देख रहे हैं। आप नौजवानों को ये बताएं कि जब मसीह यीशु नासरी आपकी जिंदगी में ना था, तब आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, तब आपकी वैल्यू क्या थी, और जब से मसीह निजात दहिंदा आपकी जिंदगी में आया तब से आपकी वैल्यू क्या है, अपने घराने के अंदर, अजीज़ो कारब के अंदर, खास तौर पे खिदमत के अंदर? पहले तो ये था कि बहुत ज़्यादा यानी कि जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, इस कदर मोहब्बत ना करते, जैसे कि इस्लाम जी करना, बस अपने काम के अंदर मगन हो जाना। लेकिन जब से यीशु मसीह ज़िंदगी के अंदर आए हैं, तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते, जो बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, वो आज जब फेसबुक पर या वैसे यानी कि मुख्तलिफ इबादतों को देखते हैं, तो उनका दिल बड़ी शुक्रगुजारी से लबरेज हो जाता है कि ये वही हमारा बच्चा था। पहले जब यानी कि उन अपने इलाका के अंदर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि नबी अपने वतन इज्जत नहीं पाता, ठीक है, लेकिन जैसे स्ट्रगल वहां पर करते रहे, यानी कि इस शहर कराची के अंदर आकर वैसी की है। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते कि पहले जो है वो जिंदगी के अंदर खुदा की ब्लेसिंग नहीं थी, जिंदगी के अंदर जो है मजा नहीं था, लेकिन अभी खुदा का शुक्र है कि जहां जहां जाते हैं, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है तेरा बाहर जाना मुबारक होगा, तेरा अंदर आना मुबारक होगा। तो जहां भी जाएगा खुदावन तेरे साथ साथ होंगे। तो आज किसी भी जगह पर चले जाते हैं, कोई भी नहीं जानता
लेकिन जब खुदावंद कलाम का मौका देते हैं, खुदावंद ऐसी हिकमत से जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो लोग जो है वो बड़ा शादमान होते हैं और लोगों की फिर ख्वाहिश होती है कि ये हादिम हमारे घराना के अंदर आकर हमारे बच्चों के लिए, हमारे कारोबार के लिए दुआ करे, और ये सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को है। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने सुना, खुदा का खादम पंजाब से शहर गुजरात से चले और कराची के अंदर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नौजवानों के अंदर जो है वो बाइबल मुकद्दस की तालीम जो है वो बांट रहे हैं। बाइबल मुकद्दस की तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो नौजवानों को दे रहे हैं, ताकि नौजवान जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लें और बरकतें हासिल करें। बहुत खिदमात हैं इनकी शहर कराची के अंदर, और जिन नौजवानों के अंदर ये खिदमत कर रहे हैं, अब घर घर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन कुछ टीम के मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपकी गुफ्तगू करवाते हैं कि क्या उनकी जिंदगी कब से खुदा ने बदली है, इस क्लास से और नाइट प्रेयर से उनकी जिंदगी में तब्दीली क्या आई है। सी में आप सबको सलाम। मेरा नाम चेरल है और हम सेवियर मिशन के साथ काम करते हैं, और हमारी यूथ है जो टीम है वो सब वो काम करते हैं मिलके सेवियर मिशन के साथ। और जब से हमने खुदा को कबूल किया तो हमारी ज़िंदगी बदल गई है, और मैं यही पैगाम देना चाहूँगी हर एक नौजवान को कि अपनी जवानी के अयाम में खुदावंद को कबूल करें, ताकि आपकी ज़िंदगी बदले और आपकी नस्लें और आप संवर जाएं। आमीन। वसीम में सबको सलाम। मेरा नाम मुस्कान शमाउन है और मैं सेवियर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर जो है हम लोग खुदावंद का काम कर रहे हैं। और मैं सेवियर मिनिस्ट्री में जो है मैं वर्शिप करवाती हूँ, और उसमें जो है हम लोग सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। मेरी सबसे बड़ी जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी के अंदर गवाही को कायम किया वो ये है कि पहले मैं जब गीत गाती थी तो इतनी ब्लेसिंग नहीं होती थी, क्योंकि मैं साथ में गाने भी गाती थी, नाचती भी थी, सारे काम साथ साथ करती थी। लेकिन जब से जो है मैंने दिल से खुदावंद को कबूल किया है, तो जो है मेरी जिंदगी के अंदर ये है कि अब जब वर्शिप करते तो खुदावंद की एक ब्लेसिंग आकर ठहरती है। जैसे जो है दाऊद परस्तिश करता था तो खुदावंद जो है वो बड़े गहरे काम करते थे। इसी तरह जो है मैं आज नौजवानों को यही जो है वो पैगाम देना चाहूंगी कि अगर जो है वो वर्शिप करना चाहते हैं तो सिर्फ वर्शिप ही करें, ना कि गाने गाएं और दूसरी चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट में लेकर आए, ताकि खुदा जब हम सिर्फ खुदावंद की वर्शिप करेंगे और खुदावंद का काम करेंगे तो खुदावंद एक्चुअली में ब्लेसिंग्स को जो है वो जारी करेंगे। आमीन। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही ये देना चाहती हूँ, मैं पहले जब खुदा में नहीं थी, मैं बहुत सी कमी हरकतें करती थी, दुनिया के कामों में थी, लेकिन अब खुदा का शुक्र करती जो खुदा ने अपने रूहानी लोग हमारी जिंदगियों के साथ अटैच किया। अब हम खुदा की मोहब्बत को जान चुके हैं, क्योंकि खुदावंदी है जो हमारा वाहिद आखिरी सहारा है, दुनिया में कोई और नहीं, हमारा अपना बस खुदावंदी है। दुनिया हमें छोड़ जाती है, लेकिन खुदावंदी है जो हमें कभी छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि उसने हमारे लिए सलीब पर अपनी कीमती जान को कुर्बान किया। हमने आज खुदावंद की मोहब्बत को जाना है। हम जब भी कहीं बाहर चले जाते हैं तो हमें वो, अगर हम लोग दुनिया के लोगों के साथ रहें तो हमें वो खुशी महसूस नहीं होती, लेकिन जब हम खुदावंद के हजूर में अपना वक्त गुजारते तो हमें बहुत खुशी होती। खुदा का शुक्र करती जब से हमने नाइट मीटिंग शुरू की है प्रेयर, तो खुदावंद बहुत बड़े बड़े काम करता है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र करती, जब मैं ढोलकी बजाती, जब मैं पहले बजाती थी तो इतना मसा नहीं था होता, लेकिन मैं जब ज्यादा से ज्यादा खुदावंद के हजूर में झुकती और खुदावंद से जोर मांगती कि खुदावंद जैसे आपका बंदा दाऊद बंदगी प्रस्तिश करता था, साज बजाता था, हमें भी वैसी बरकतों से भरे। तो मसीह में आप सबको अस्सलाम। मेरा नाम सुजैना शमाउन है और मैं सेवियर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और जब से हम लोगों ने बाइबल स्टडी स्टार्ट की है भाई शरूस के साथ मिलकर, खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में जो है वो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। पहले जो है मैं स्टडीज़ में भी इतनी अच्छी नहीं थी, और जो है मैं चर्च में भी बहुत ज़्यादा शर्माती थी। और अब खुदावंद ने, जब से हमने बाइबल स्टडी स्टार्ट की है, हम लोग जो है वो मीटिंग लीड करने का भी जब हमें मौका मिलता है तो खुदावंद जो है वो हमारे वसीला से बहुत गहरे कामों को करते हैं। और मैं तमाम नौजवानों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। जिस तरह खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी को बदला, खुदावंद आपकी भी ज़िंदगियों को बदलने की कुदरत रखते हैं। आमीन। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपने जिस तरह पिछले प्रोग्राम में देखा है कि जलाल टीवी किस तरह अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में, और हमारी दुआ यही कि इंटरनेशनल तौर पर भी इन्हें खुदावंद इस्तेमाल करेंगे। तो जो है आप सबसे ये इल्तमास की जाती है कि आप भी इनके साथ मिलकर खिदमत का आगाज़ करें, और जो हमारा मिशन है जो रूहों की निजात का है, ताकि हम सब, क्योंकि खुदावंद ने कहा इत्तेफाक में बरकत है, तो जब हम सब
इत्तेफाक करके खुदावन का काम करेंगे तो यीशु के नाम से हर एक नामुमकिन काम हो जाएगा। और जो हमारा सेवियर मिशन है, मैं उसकी थोड़ी आपको डिटेल देना चाहूँगी कि वो आज़म बस्ती में है, आज़म टाउन में, गली नंबर 11 में उसका हमारा चर्च है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जब बन जाएगा तो आप ज़रूर आएँ। हम जलाल टीवी के लिए भी दुआ गो हैं और दीगर टीवी चैनल जो मुल्क पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनके मुख्तलिफ ख्यालात तो हो सकते हैं, मगर उनका मकसद एक ही है कि लोग मसीह तक पहुँच सकें और किसी सबब से वो निजात पा जाए और खुदा का वो मकसद पूरा हो कि मेरी मनादी जब तक दुनिया के कोने कोने तक इंतहा तक ना पहुँच जाएगी, मेरा आना जल्द ना होगा।